Hello to all FIBSC students. Welcome to the another video lecture of microbiology paper second. So here we will start with the unit second of your syllabus, which is the bacterial growth. Hereupon we will see the different points related to the bacterial growth, that how it can be studied and how it can be measured. Okay. Now here we will start with the first point of our syllabus, chapter second of your syllabus, that is the growth kinetics of the bacteria. Okay, how the bacterial growth is been how the bacterial growth can be like measured, or how it can be understood using the kinetics. Okay, kinetics means what? The deep analysis of any reaction, that is known as the kinetics. Now when we study the kinetics, firstly we need to understand the bacterial growth concept. Okay, so bacterial growth means what? It is the doubling time of, or doubling of the bacteria in a given time. Okay, in a given time means what? Bacteria usually reproduce using the binary fission. Okay, binary fission मतलब क्या? जब एक से दो बन जाते हैं, एक सेल से अगर दो बन जाए, then that is the binary fission. And using the binary fission, when the bacteria reproduces and the cell, okay, in short the bacterial cell undergoes some kind of a physical enlargement or the chemical changes in the presence of the certain type of favorable conditions, then we call it as a growth. Okay, depending on the environment. Now this growth can be studied using the kinetics. Okay, this growth needs to be studied to notice that how bacteria behave in the different patterns in the different types of the environment. Now this bacterial growth, it can be the exponential growth or it can be the logistic type of the growth. Okay, so the bacterial growth, when we say logistic type of a growth, if we draw the curve. Okay, suppose we are growing a type of bacteria in our lab. Okay, and we need to understand that how it responses towards certain kind of conditions. Okay, so for that purpose we need to study the different things, observe the different things. Okay, तो वो ऑब्जर्व कैसे करते हैं, जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, वो ऑब्जर्व कैसे करते हैं वो हम बाद में स्टडी करेंगे. बट अगर हम उसके डीप काइनेटिक्स देखें तो जनरली दो टाइप्स के ग्रोथ होते हैं. एक तो लॉगिस्टिक ग्रोथ होती है और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तब आप जब क्या होता है कि हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के बाद वो उसको खाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, बाइनरी फिशन करते हैं और डबल होते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं. ठीक है, लेकिन ग्रो कब तक होते हैं? जब तक पॉपुलेशन रीचेज द सर्टन कैरिंग कैपेसिटी. अब सर्टन कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या? कि वो बैक्टीरिया जो है वो मैक्सिमम, वी से रीच, दे रीच द मैक्सिमम ग्रोथ एनवायरमेंटल कैपेसिटी. ओके, मतलब एनवायरमेंट की भी कैपेसिटी होती है. नाउ वी कैन, हमारी बात करें ह्यूमंस की, तो जितनी लैंड पे कैपेसिटी है आप उतने ही वहाँ पे रह सकते हो ह्यूमंस. तो वैसे ही बैक्टीरिया का भी है, हम ओवर क्राउड नहीं कर सकते. बैक्टीरिया का भी वही है कि वो एनवायरमेंट की कैपेसिटी तक ग्रो रहती है. तो जब हम उसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, ग्राफ बनाएं अगेंस्ट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइम. ओके, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, लाइक यस शेप. ओके, और वो तब तक ही आएगा. मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया पहले यूटिलाइज करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वो बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते अप टू अ एक्सटेंट जब तक उनकी कैपेसिटी ख़त्म नहीं हो जाती. कैपेसिटी ख़त्म होने के बाद वो डिक्लाइन होते हैं और नीचे चले जाते हैं. ठीक है, उनकी ग्रोथ डिक्लाइन होते जाती है. तो ये होता है कर्व, दैट इज़ द लॉगिस्टिक टाइप ऑफ अ कर्व जो आपको ऑब्टेन होता है. ठीक है, अब अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें, तो अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, सो व्हेन वी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तब क्या होता है, हम अगर बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करती है एंड वो तब तक यूटिलाइज करती है जब तक उनका भी कैपेसिटी ख़त्म नहीं हो जाता. ठीक है, अभी पहले उनको न्यूट्रिशन मिलता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो वी से उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, अफिनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है टूवर्ड्स द, आई वुड से सबस्ट्रेट या फिर उनका फूड. उसकी वजह से क्या होता है, वो जल्दी जल्दी ग्रो होना शुरू करते हैं. उसके बाद उनकी ग्रोथ एकदम से एक स्टेशनरी फेज में आ जाती है, जहाँ से उनकी ग्रोथ होना थोड़ा सा कम हो जाता है और ग्रोथ उतनी ही रहती है. ठीक है, तो ये
फेज जो है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ द ग्रोथ. नाउ दिस ग्रोथ कैन बी गिवन और मेजर्ड बाय यूजिंग द मोनैड्स इक्वेशन. सो जब हम बात करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स की, ठीक है. अब काइनेटिक्स कब आता है? जब हम मेजर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट एंड माइक्रोबियल एंड द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ओके, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट मतलब कितने स्पीड से वो ग्रो हो रहा है, एंड इसके साथ हम किसको कंपेयर करते हैं? द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए इसको इतना ग्रो होने के लिए. हम जब ये रिलेशन चेक करते हैं दैट्स द ग्रोथ काइनेटिक्स, हम तब उसको स्टडी करते हैं. तो मोनैड इक्वेशन जो होता है वो एक आई वुड से रैदर कि एक ऐसा इक्वेशन है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टडिंग ऑफ द ग्रोथ काइनेटिक्स ऑफ व्हाट? बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये स्टडी करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ होता है? मोनैड इक्वेशन. नाउ मोनैड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यू कैन सी हियर दिस इज द मोनैड इक्वेशन. यू म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स यस इंटू के एस प्लस यस. ठीक है, ये होता है इक्वेशन, दैट इज द मोनैड्स इक्वेशन. तो मोनैड इक्वेशन जो होता है वो डिस्कवर किया था या दिया था द साइंटिस्ट जैक्यूज मोनार्ड. ओके, उन्होंने इस इक्वेशन से जो है माइक्रोबियल ग्रोथ रेट, अब वो भी कौन सा? एक्वियस एनवायरनमेंट का एंड न्यूट्रिएंट्स का जो रिलेशन होता है, ग्रोथ और न्यूट्रिशन का जो रिलेशन होता है वो इन्होंने डिस्कवर किया था. एंड ये इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट यूजिंग द मोनैड्स इक्वेशन. नाउ ये मोनैड्स इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन है म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस अपॉन के एस प्लस यस. ओके, तो ये इक्वेशन में जो म्यू है इट इज़ द specific growth rate of the microorganism. ठीक है, then mu max is the maximum specific growth of the microorganisms. yes is the concentration of the limiting substance for the growth, मतलब कितना substrate आपने उसको दिया है. then ks is the half velocity constant. लेकिन कब? जब वैल्यू जो है यस की इट इज़ 0.5. ओके, वैल्यू यस इज इक्वल टू ऑलवेज म्यू अपन म्यू मैक्स. तो वैल्यू अगर 0.5 है देन द यस जो अपना के एस है इट इज़ द मैक्सिमम. ठीक है, या हाफ वेलोसिटी कांस्टेंट. ओके, इट कैन बी डिटरमाइन यूजिंग दिस. तो ये इक्वेशन से जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं द ग्रोथ रेट ऑफ द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इस स्लाइड में या इस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया कैसे यूटिलाइज करता है, इट क्लियरली मैटर्स फॉर द ग्रोथ. ठीक है, अब ग्रोथ जो होती है जनरली आई टोल्ड यू बाइनरी फिशन से होती है. एंड दो ग्रोथ कर्व्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द स्टडिंग द ग्रोथ काइनेटिक्स ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज द लॉगिस्टिक कर्व एंड द एक्सपोनेंशियल कर्व. लॉगिस्टिक कर्व जो होता है वो एस शेप का होता है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व जो होता है वो काइंड ऑफ जे शेप का होता है. ठीक है, तो लॉगिस्टिक जो ग्रोथ होती है वो तब तक होती है जब तक उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं आ जाती. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब थोड़ी सी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट. ठीक है, सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड हो तो वो होती रहती है, बट स्टेशनरी फेज तक होती रहती है. उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, तब तक इंक्रीज होती रहती है, लेकिन बाद में वो कांस्टेंट हो जाती है और जे शेप का आपको स्ट्रक्चर दिख जाता है इन द ग्राफ. सो दैट्स अबाउट इट. और उसके बाद जो डिटर्मिनेशन होता है ऑफ द दिस ग्रोथ रेट ऑफ द बैक्टीरिया इट इज़ यूजुअली डिटरमाइंड यूजिंग द important thing that is the monads equation जो है म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स यस अपॉन के एस प्लस यस. ये इक्वेशन आपको याद रखना है. दैट इज द इक्वेशन विच इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द व्हाट? बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स. नाउ आफ्टर दिस थिंग, ये हुई बात बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स की. इसके बाद हम ग्रोथ कर्व स्टडी करेंगे. ग्रोथ कर्व के बाद हम डायोक्सिक ग्रोथ कर्व एज वेल एज जनरेशन टाइम के बारे में भी जानेंगे कि वो लोग कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, या उसके थ्रू हम बैक्टीरियल ग्रोथ को कैसे स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स अबाउट दिस लेक्चर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी पॉइंट ऑफ दिस any point of your syllabus, please do feel free to contact me. Okay, thank you.